हाँ भाई लोगों, मीटिंग शुरू हुई कि नहीं हुई अभी? Hello, good evening. Good evening, madam. Yeah, I'm going to start. Mute the sound, please. कहीं और से आवाज आ रहा है, सबको बोल रहे हैं कि सबका म्यूट कर दीजिए. थैंक यू. So it is already 5. I will just show the PPT, then I'll start. सिर्फ कोऑपरेट कीजिए अगर दिख रहा है कि नहीं तब तक. सबको दिखाई दे रहा है? पीपीटी अभी तक नहीं दिख रहा है ना? I'll try once more. Is it visible? Yes, ma'am. Oh, thank you. अच्छा. फुल स्क्रीन दिख रहा है सबको? Is it visible to all as full screen?
Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you for your cooperation. So we'll go for a few minutes. Just let us go for this. So this is from IGNO. I'm Dr. Rita Bhattacharjee. I'm a counseling psychologist and I'm head of the department in VIT. So psychology is one of my favorite subject, and this is how we know and develop ourselves. So here I am going to talk about self-development of teachers. Teachers are the backbone of the society. So what type of development is needed for the teachers? How are they going to cooperate with them? How are they going to bring their stress level if it is so? How are they going to show their leadership? Which leadership is it? So you all can see with more examples I will be giving so that you can come up with any type of doubts at the end of it. So anytime if you cannot hear or if you cannot see my slides, please switch on, you unmute and you can tell me. So there are two blocks in self-development of teachers. One is understanding your own self and managing your own self. Like there are so many type of personal, interpersonal processes. You know, you all are leaders by yourself. So when you are inside the class, you are the leader, and the students are the followers for you all. So what type of leadership style do you feel you have with you? That also we will discuss. We will discuss what are the professional values and ethics of a teacher, because in this generation, as the generations are coming up, we have to be very careful. I also deal with university students, and they very much lack patience. They expect more. They are attention seeking, so we have to be careful in everything, right? So then we will be going for managing our own self. What type of conflicts may arise within us? Stress to sabhi ka hai hi stress. What type of stress you have and how it is to be managed. And communication skills is very important for a teacher. So what type of communication skills, verbal or non-verbal, how you're going to develop them. And at last we'll go for decision making and problem solving. So, teaching as a profession. So, what type of expectations we get from the teachers? So they influence students' socio-emotional well-being. Nowadays, emotional thing is very important. You cannot hurt anyone by physical or any social or anything. Like emotional, if you hurt, they're hurt to that extreme. So, how are the teachers going to influence students' socio-emotional well-being and academic performance? That is what. And requires understanding and managing the self, which is very important. So, here we will be helping you all to, develop personally as well as professionally. It is not only profession we are thinking of. As a whole, we have our personal family, personal background, personality of our own. So where do we fall ourselves? It will be giving a boost on enthusiasm for you to continue the rest of it. Now, as you see, we will be going through different type of topics, like interpersonal processes is there. Then I'll be coming across transaction analysis, transaction styles, life position. Where do you find your life position and how you're going to analyze, game analysis, script analysis, everything we will come across. Then we'll go for leadership, its base, power, and styles. But first of all, any individual, if we take, rather than a leader, they need to identify themselves. The identity is very important. Like, I am a teacher of this class, I am a class teacher of this class, or I am teaching this subject, and I am, what is your personality? Who am I? So, whenever we are going for an interview, that's the very first question. Talk about yourself. So here, are you able to think of yourself without referring to others around you? Sometimes you need to refer to others also.
You yourself cannot exist without the reference of others, like a teacher is always with the students. Now, where am I? Which class, which school, which department? Do we exist in isolation from others, or do our families, friends, colleagues, and students from integral parts of who we are? We do, right? So, where am I going? Every time you just ask 3 questions to yourself, not only as a teacher, as a person, I will ask, you can come to know more about yourself, which we usually ignore. Does the perception of others about us change how we view ourselves? Perception differs from people to people. I have my own perception. My friends will be having my own perception. My colleagues will be having my own perception. So every answer will highlight how the sense of self is intertwined closely with others around us. So, as a teacher, the others are our colleagues, the management, the students. This all people comes into the picture for a teacher. So, I felt one of the first thing that we have to come across is interpersonal processes. Now, these interpersonal processes have two important concepts. How this interpersonal process can take place with the help of these two factors. One is transactional analysis. This transactional analysis says 3 types of ego states: parent, adult, child. Usually, we say in our day to day life that ego, you have too much of ego, what type of ego you are showing off. So, I will be talking about different type of ego also. And when different type of ego comes into the picture, how is the situation or reaction which takes place among us? Now, life position analysis. Sometimes I feel I am fine. Sometimes I feel I am not fine. Sometimes I feel they are fine, others are fine, I am not fine. Sometimes it takes in a different angle. It depends upon situations and circumstances, which goes on changing. Well, we will come across that also. Now, one of the ways in which communication can be understood is spoken to be as transactional analysis, which was developed by Eric Berne in 1950s. You just see, from that type of, that end of that year, we have started analyzing ourselves. The person, Dr. Byrne, he believed that childhood experiences are the basis for the development of personalities, especially as parents, if we talk about individuals apart from teachers. Now, for personal well being, we have to see our family, we have to see our, children. The way they are treated, they are going to develop the personality accordingly. So, if you are treated in a restricted way with fear in you, so you will be having your own personality as well. So, here, depending on the childhood experience, we behave. Our actions are seen, our feelings have been, interrupted, and that is what becomes our personality. Now, he used the term transactions to refer communication between people. So when a small child communicates with a mother, with a father, with sister or brother or relative or friend, that is where the communication starts. So the person initiating the conversation who starts is called the stimulus. And the stimulus is the message of communication. Until and unless one person asks you something, you will not respond, right? That is where the stimulus is there. The person receiving the stimulus is provides a transaction response. So in between the stimulus and response comes the communication. So anytime when we deal with our child, they are observing us in every ways. So they grow up by observing us. During COVID, there have been so many issues, especially domestic violence, taking place inside the family. Children are growing up accordingly, and it is becoming their personality when they grow up as an adult. So, this is how our process has to take place. We have to be very careful
when we deal with each other, when we deal with our students, or when we deal with our own children. Now comes the ego states. You can think about yourself when we learn this ego states. Now, here transactional analysis, which is everywhere, the communication of human personality, it comprises of three ego states. One is parent, another adult, and finally the child. Now, according to Byrne, what he says is communication is the healthiest when the interaction is between two adult ego states. That shows they understand each other. Until and unless we understand each other, our communication is by default unhealthy. So, however, it is common for people to remain in the child or parent ego state. Hardly we come to the adult ego state. Sometimes we desire something, sometimes we are aggressive, sometimes we are submissive. It depends upon the. I will be giving you some more examples after that. Now, let us start with child. So when adults have behave in a manner similar to how they behave when they were a child, why will they behave like that? Because they still have the childish attitude. So they are in the child ego state. Sometimes very much impulses. You have to do. I want this. That feelings comes within the individual. Even though they are parents, even though they are teachers, sometimes our childish attitude remains with us. Now, in this childhood attitude, we have two states. One is adopted child, another one is free child. The adopted child ego state refers to a state in which a person acts in compliance with the demands of others. You just think of one person adopting. So, they will be going with the demand of others. They do not have their own freedom to do it. The free child ego state refers to being creative, spontaneous, and playful. Like when we go to another person's house, so we cannot be playful, we cannot be free because it is different. And it is our house, it is free. So the free child is natural and often acts without thinking of the consequence of any situation. So in child ego state, we have two. One, we adapt to the thing. One, we go with the demands of the situation. And another is we do whatever we feel like. So there have been in many houses, you will see there are two types of ego state. One, you can see the child, whatever wants they get it, or they expect, or they demand, it's there for them. But somewhere, some houses, we don't. We are restricting something, right? Then comes parent ego state. So as children grow up, they tend to copy the behavior patterns and responses of the parents, maybe their elder siblings, maybe their grandparents, because small children, they are mostly with the grandparents, or they may see any favorite teacher, they may adopt. So they feel that these are the role model for them. Well, if the parent ego state comes under any type, like maybe controlling parent or nurturing parent. If the child is taking the person as a role model, the person may be controlling or nurturing. Now, the controlling is just like a critical parent. You know, if the child asks for something, they will just say, no, I'm not going to give. So in most of the schools, we see that the children are mostly with studies. You study this time, you study that time, you have to get good marks. So this all are critical parents or controlling parents. Even they do not allow their children to go out to play games. Whereas in imitating the critical parent, the person tends to use a voice of authority towards others. Maybe the child is seeing all these things at home. When they go for in the games field or so, playground, they will be using these things towards the friends. Whereas in contrast, the nurturing parent responds to a situation by trying to protect the child in difficult situation. So here
Nurturing means they will be soft, whereas controlling or critical will be, they will be aggressive. So these are different type of ego states I'm talking about. Then comes adult. Adult is very much matured. They are rational. They talk logically. They don't go with the conclusion. They listen to the others, respond in a very calm manner because we consider them as matured. Even in between the children also, we find so many children, they talk maturely. The person is likely to demonstrate respect for the other person's thoughts, feelings, and is willing to negotiate and compromise. So these are adult ego states. So how many ego states we have? We have 3 ego states in terms of communication or transaction analysis. Child ego state, parent ego state, and adult ego state. Child, we have a controlling critical, child we have adopted or free child. And parent we have controlling or critical and nurturing, and adult is always mature. So here remember all these things because the rest of the slides will be based on the ego states. Now how we are seeing the interaction between all the 3 ego states? We are in a situation where all the 3 ego states do not work the same way. It differs according to the situation, according to the perception, according to how they receive the information from the surroundings, and they respond to it. This interaction between 2 people will be influenced by whether they are in child, adult, or parent ego state. So, here, in order to go for any type of ego states, you will be seeing the strokes. Strokes comes in the form of verbal or non-verbal communication to physical contact. In positive stroke, Excuse me, ma'am. yes, Excuse me, madam. yes, sir. Only one slide is shown here, madam. Other slides are not visible. Only one slide is available. Okay, okay. Which slide is being seen, sir? Only first slide, madam. Only first one. Other are just we have not. We are not Okay, able. okay, okay, okay. Can you see now? Yeah, just first slide. Only first. Now? Yeah, Now? second. Yes. Oh, Yes. okay, okay. So, I'm so sorry. Just let me know if things are not working out. Let me know. Now you can see? Yes. Second slide. Madam. Okay. Third slide is coming now? No, madam, this is second slide. Oh, okay, okay. Maybe the full screen is not coming. Now? No, now it's Yes. the third slide. Yes, Now the third one, right? third one. Third one. Okay, okay, okay. Okay, so sorry. Like we have completed the interaction, interpersonal processes. Now is it moving? Yes. Yes. Madam. Okay, thank you. So now you have seen the ego states, right? Yeah, madam. Oh, okay, okay. Thank you. Please let me know if anything takes place in between. Okay, thank you. मैडम बीच में हिंदी इंग्लिश में चल सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं? हाँ, मतलब थोड़ा सा हम जो एमपी वाले हैं, अच्छा अच्छा थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना? चलिए, अच्छा। अभी मतलब जो ये ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर ईगो स्टेट्स में हम 3 तरह का ईगो स्टेट्स बताए। एक तो चाइल्ड ईगो स्टेट, जहाँ पर अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, फ्री चाइल्ड होता है। सो अडॉप्टेड में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होता है, जहाँ पर फ्री चाइल्ड में फ्रीली काम कर सकते हैं। तो हम एग्जांपल्स देंगे एक से एक के बाद एक। पेरेंट ईगो स्टेट में कंट्रोलिंग पेरेंट, कोई कोई फैमिली में होते भी हैं ऐसे कि कंट्रोल करना है बच्चों को। अगर एक बच्चा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, उन लोग तो लोनली फील करने लगते हैं। और नर्चरिंग पेरेंट, जो सपोज दोनों काम कर रहे हैं, बच्चा का जो चाहिए साथ ही साथ दे देना, तो और अच्छे से नर्चर करना, वही सोचते हैं उन लोग।
So these are different two types of parental ego state. अच्छा, कोई अनम्यूट करके रखे हैं क्या? थोड़ा म्यूट कर दीजिए. हाँ, थैंक यू. कुछ आवाज आ रहा है, आप सब देख लीजिए किसका अनम्यूट करके रखे हैं ताकि म्यूट करने से अच्छा. सुमन सिंह जी. मैडम एक क्वेश्चन है, बोलिए. ये मैडम एडल्ट ईगो और पेरेंट्स ईगो में क्या डिफरेंस है? क्योंकि हम लोग पढ़ते रहे, थोड़ा क्लियर नहीं आया बुक से. व्हाट इज द अच्छा. बेसिक डिफरेंस? एडल्ट ईगो होता है मैच्योर्ड, मतलब जब एडोलेसेंट आता है, मैच्योरिटी क्रिएट करते हैं, देखते हैं बच्चे जब बड़े होते हैं. तो पेरेंट ईगो थोड़ा उससे ज्यादा हो जाता है, कंट्रोलिंग टाइप हो जाता है कि नर्चरिंग टाइप हो जाता है, जहां पर पेरेंट अपने हिसाब से बच्चों को परवरिश करना चाहते हैं, है ना. चाइल्ड होता है कुछ सालों के लिए. चिल्ड्रन के बाद जो एडोलेसेंट स्टेज आता है, जैसे कि क्लास 8-9 हो जाता है, बच्चे बड़े होते हैं, तभी हम लोग सोचते हैं कि बच्चों को समझदारी आ जाता है ना. या समझ में आ रहा है सर? या मैडम, यस यस, बिल्कुल मैडम. राइट, थैंक यू. तो अच्छा, तो ये पेरेंट ईगो स्टेट है, जबकि बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं. एडल्ट ईगो स्टेट में जो लॉजिकली बात करते हैं, जो रैशनली बात करते हैं, जो दूसरों को समझते हैं और आराम से बात करते हैं, हम लोग उन्हीं को ही एडल्ट ईगो स्टेट में बोलते रहते हैं. ओके, जैसे कि हम बोलें देयर इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द 3 ईगो स्टेट, चाहे पेरेंट हो या चाइल्ड हो या अडल्ट हो. इन सम सिचुएशन, कुछ सर्कमस्टेंसेस में कुछ भी ईगो स्टेट हम यूज कर सकते हैं, हमारा मर्जी, तो हम वो दिखाएंगे. लेकिन ईगो स्टेट डिफर करता है हमारा कम्युनिकेशन के ऊपर. वर्बली हम कैसे बोलते हैं, किसी को अच्छे बोलते हैं, यू आर वेरी गुड, यू हैव डन वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे बोलते हैं किसी किसी को, और अच्छा स्माइल भी दे देते हैं, चलो एक कम्प्लीमेंट दे देते हैं. तो वो होता है पॉजिटिव स्ट्रोक टुवर्ड्स द चाइल्ड और टुवर्ड्स द स्टूडेंट. लेकिन बीच बीच में हमारा नेगेटिव स्ट्रोक भी हो जाता है व्हेन द चिल्ड्रन और द स्टूडेंट्स डू नॉट ओबे अस, देयर इज नो रेस्पेक्ट. तभी क्या करते हैं, एक थप्पड़ कोई बैठा देता है, या जोर आवाज से बोल देते हैं, या किसी को अच्छा नहीं लगता तो बाहर निकाल देते हैं. ऐसे ऐसे कोई स्कूल में होता है, पहले होता था, लेकिन आजकल बच्चों को बाहर निकालना ही मुश्किल है. बाहर निकल गए तो बस निकल ही गए, उनको पढ़ने का मन ही नहीं है. तो उन बच्चों को कैसे क्या किया जाए. सो द स्ट्रोक्स हैज टू बी गिवन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे कि समवन इन द पेरेंट ईगो स्टेट इज लाइकली टू गिव नर्चरिंग स्ट्रोक्स. जैसे कि टीचर कोई अच्छे से बात किए, क्यों ऐसा क्या हुआ, कल 2 दिन से क्यों नहीं आए, तुम्हारा अटेंडेंस कम हो गया. ये होता है नर्चरिंग पेरेंट जैसा बात करने का स्टाइल. लेकिन कोई टीचर अगर ऐसा बोले कि 2 दिन तुम नहीं आए, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, तुम तो अटेंडेंस में भी 0 हो रहे हो, तो ये होता है कंट्रोलिंग. तुम्हारा होमवर्क जो रह गया है तो सब ठीक करना है. तो स्ट्रोक के हिसाब से हम लोग का ईगो स्टेट डिफाइन किया जाता है. सो दैट इज व्हाट आवर पर्सनालिटी. बोला जाता है कि जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग के ऊपर ऐसा स्ट्रोक दिया गया है, जैसे हम सीखे वैसा ही हम दूसरों को ट्रीट करते हैं. तो ऐसे अगर किया जाए तो हमारे ऊपर ही मुश्किलें आ जाएगा. तो इसलिए हमारे ईगो स्टेट में फर्क होता है कभी जब स्ट्रोक के हिसाब से होता है, जैसे कि अच्छे से स्माइल कर देना, किसी को गुड मॉर्निंग बोलना, किसी के पीठ थपथपाया जाए, तो ये सब होता है पॉजिटिव स्ट्रोक. तो पॉजिटिव स्ट्रोक में ईगो स्टेट अलग होगा, नेगेटिव स्ट्रोक में ईगो स्टेट अलग होगा. अभी देखिए ट्रांजैक्शनल स्टाइल्स. ये जो डायग्राम देखा गया है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि चाइल्ड दोनों ही एक चाइल्ड ईगो स्टेट में बात करेंगे. नो,
कोई कोई बच्चे इतने बड़े जैसे बात करते हैं कि मानो उन्हीं लोग ही पेरेंट ईगो स्टेट में आ गए। कोई कोई बच्चे एडल्ट जैसे बात करते हैं, तो जैसे हम लोग सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इसको सिखाया गया है क्या, लेकिन नहीं। तो ईगो स्टेट डिफर होता है। इवन एक पेरेंट भी चाइल्ड जैसे भी बात कर सकते हैं, एक पेरेंट एडल्ट भी बात कर सकते हैं, एडल्ट चाइल्ड भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ सिचुएशन या सर्कमस्टेंस नहीं है जिसको कहाँ पर कैसा बात करना है। So there is a communication between different ego states. When both of them are in the same age group also, हम लोग को दिख रहा है कि एक बच्चा बच्चा जैसा बात कर रहे हैं और एक बच्चा उसी एज का समझाता है कि अरे ऐसा करना है, वो करना है। So it differs in this way. अपने माहौल कहाँ पर है, अपने माँ बाप को देख रहे हैं, अपने रिलेटिव्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी है, तो उनका स्टाइल ऑफ टॉकिंग डिफर्स, right? So these are different type of interaction or communication between different ego state. तो ईगो स्टेट में हम लोग को दिखने को मिला कितना ईगो स्टेट है। हम लोग जब बोलते हैं ये चाइल्ड ईगो, मतलब बच्चा जैसा बात करता है, तो वहां पर हम लोग अपने टर्म क्या बिठाएंगे ना, ये चाइल्ड ईगो स्टेट में बात कर रहा है। सो दिस इज अ डिफरेंट टर्म्स इन आवर डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स, सो वी कैन यूज। अब इवन आपस में अगर एक कोलीग के साथ बात करते हैं, तो हो सकता है कि उनका घर परिवार में कुछ मुश्किलें आ गए हैं, उनको रोना जैसा लग रहा है, तो the person cannot come with a parent or adult, they will come as a child ego state. So इसलिए हम बोलते हैं कि अपना सिचुएशन के हिसाब से सब कोई काम करते रहेंगे। Now transactions, किस तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है? यहाँ पर कंप्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन एक है, जो कि सेंडर कैन प्रेडिक्ट द रिस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर। हम लोग कुछ बात कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो बात का आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे हम एक एग्जांपल दिया है, फिनिश योर होमवर्क फर्स्ट बिफोर यू गो आउट टू प्ले। तो बच्चों को क्या आंसर होगा? यस सर और यस मैडम, आई विल डू एज यू से। तो ऐसा तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि नो वी विल नॉट डू। शायद आ रहा है, वो जमाना भी आ रहा है, लेकिन हम लोग को चेंज होना है एज टीचर। तो this is what complementary. So we know what type of answer will be received from the receiver. जो ऐसे घर में भी बात करते हैं कि टीचर कॉलीग्स में बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे बात करना है कि जाके कम्प्लीमेंट्री का ट्रांजैक्शन वाले पता चल जाता है। दिस वुड लीड अनइक्वल रिलेशनशिप बिटवीन कॉलीग्स। जैसे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे एक पेरेंट ईगो स्टेट जैसे बात करते हैं और एक चाइल्ड ईगो स्टेट जैसे बात करते हैं, इवन इन बिटवीन द कोलिग्स एक स्कूल में, तभी एक अनहेल्दी रिलेशनशिप आ जाएगा, जैसे कोई डोमिनेट कर रहा है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री में नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री में तभी होगा जो एक बड़े छोटे को कुछ बोल रहे हैं और बड़ों को पता चल जाता है कि हाँ छोटा का आंसर ये होगा। क्रॉस ट्रांजैक्शन, क्रॉस ट्रांजैक्शन दोनों का अलग अलग रिस्पॉन्स होगा। जैसे कि जब पेरेंट बोलते हैं अपना ईगो स्टेट में, व्हाई हैव यू गिवन लो मार्क्स टू माय चाइल्ड, ऐसे कोई कोई बोलते भी है। बच्चा जब कम मार्क आता है लाते हैं तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग तो होता ही है, तो वहाँ पर पेरेंट कोई जो समझ नहीं दे पाते हैं, ज़्यादातर हमें देखने को मिला है ऐसे कि बच्चा को, हमारा बच्चा अव्वल आना चाहिए, बच्चा तो पढ़ता ही है घर पे, वो तो लिखा भी है, आप ही मार्क नहीं दिए होंगे। तो टीचर एडल्ट ईगो स्टेट में आते हैं जब योर चाइल्ड्स वर्क डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द असाइनमेंट, तो बोलते हैं, उनको समझते हैं कि ठीक है आप देखिए बच्चा के क्या क्या लिखा है, उसी के हिसाब से वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं टीचर। लेकिन पेरेंट बोलते हैं यू डू नॉट अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एंड एक्सपेक्ट पेरेंट्स टू डू देयर वर्क।
ऐसे ऐसे कोई बोलते भी है कोई कोई स्कूल में, यू हैव डिलिबरेटली गिवन लो मार्क्स टू माय चाइल्ड। तो इस तरह का पेरेंट को कौन सा ईगो स्टेट में हम लोग बोलेंगे? क्रॉस कंट्रोलिंग। ट्रांजेक्शन। क्रॉस ट्रांजैक्शन में कौन सा ईगो स्टेट? कंट्रोलिंग ईगो स्टेट। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग नहीं तो क्रिटिकल। जैसे कि एक कंट्रोल करना, चाहे आप टीचर हो या ना हो, हम जो बोल रहे हैं उसी को ही काम करना है। तो ये होता है क्रॉस ट्रांजैक्शन, जहां पर हम लोग अगर कुछ बोले भी, चाहे क्यों टीचर बोलेंगे कि ठीक है हम लो मार्क्स दिए, थोड़ी कोई टीचर बोलने वाला है, तो टीचर तो समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कंट्रोलिंग, आप आहिस्ता आहिस्ता जब स्लाइड देखते जाएंगे आपको पता चलेगा कौन कौन ईगो स्टेट काम कर रहा है कहाँ पर, है ना। तो ट्रांजैक्शन में पहला देखें कॉम्प्लीमेंट्री, जहाँ पर दोनों का एक ही जैसा है, मतलब जो भी हम बोलते हैं हमें पता चलता है कि दिस इज द रेस्पॉन्स मिलना चाहिए, लेकिन क्रॉस में वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का रेस्पॉन्स पूरा अलग है ना। इट इज क्रॉस, इट गोज क्रॉस अक्रॉस। नेक्स्ट होता है अल्टेरियर ट्रांजैक्शंस। ये अल्टेरियर ट्रांजैक्शन में क्या होता है? देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एक्चुअल मैसेज एंड द इंटेंट बिहाइंड इट। Sender appears to be giving a message from his adult ego, but actual message is coming either from child or parent. जैसे कि एक पेरेंट बोल रहे हैं, डोंट लिफ्ट द टेबल, यू आर ए स्मॉल चाइल्ड, आई विल डू इट माई सेल्फ। टीचर खुद बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो स्टूडेंट क्या बोल रहा है वहां पर? मैम इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, हम कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी आ रहा है। तो स्टूडेंट ना है, स्टूडेंट अपने हिसाब से वो दिखाना चाहता है कि हम टीचर को क्यों बोले, हम खुद ही कर लेते हैं। सो देयर इज ए मैसेज हिडन जो कि नहीं आ रहा है। तो देयर इज ए डिस्क्रिपेंसी। अगर टीचर कुछ बोलना चाहते भी है तो डिस्क्रिपेंसी के हिसाब से अलग मैसेज आ जाता है स्टूडेंट से, लेकिन स्टूडेंट कुछ खराब नजर से नहीं बोल रहा है, अच्छा नजर से बोलना चाहता है। ये होता है अल्टेरियर। तो हम लोग का कितना ट्रांजैक्शन स्टाइल्स देखे हैं हम? 3। वन इज कॉम्प्लीमेंट्री, क्रॉस्ड एंड अल्टेरियर। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग भी देख सकते हैं अपने हिसाब से, स्टूडेंट में अगर कुछ बातचीत चलता है तो किस तरह का ट्रांजैक्शन स्टाइल हो सकता है, या टीचर में जो बातचीत होता है कैसे होता है, ठीक, लॉजिकली होता है कि नहीं, समझदारी होता है कि नहीं। टीचर प्रिंसिपल में थोड़ी हो सकता है, वहाँ पर प्रिंसिपल अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो टीचर को तो करना ही है। तो इस तरह के ईगो स्टेट, अलग अलग ईगो स्टेट हो जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे स्टूडेंट जब बात करते हैं तो दोनों ही चाइल्ड ईगो स्टेट में बात करते हैं, ये नहीं बोल सकते। हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से कोई स्टूडेंट कुछ पूछताछ कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट आंसर कर रहा है ना। तो यहाँ पर चाइल्ड और एडल्ट भी आ सकता है। तो जैसे हम बोले सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों का ईगो स्टेट या ट्रांजैक्शन स्टाइल चेंज हो सकता है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ पोजीशन एनालिसिस। लाइफ पोजीशन एनालिसिस कुछ बिलीफ के ऊपर आ जाता है, हमारा विश्वास हम कैसे है। तो हमारा विश्वास हमें ही पता है, दूसरों को नहीं पता। तो हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, किस तरह का डिसीजन हम लेना चाहते हैं। तो हमारा सिचुएशन, हमारा परिस्थिति, हमारा सर्कमस्टेंसेस को लेके हम खुद को डिफाइन करते हैं। जैसे कि लाइफ पोजीशन में 4 तरह का लाइफ पोजीशन है। कभी कभार हम बोलते हैं हम ठीक है, आप भी ठीक हो, आई एम ओके, यू आर ऑल्सो ओके। तो ये एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक, अच्छा तरह से कन्वर्सेशन हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे होता है सिचुएशन जहाँ हम भी ठीक, हम तो ठीक है ही, आप ठीक नहीं है। तो दूसरों पर गलत इल्ज़ाम लगाना, या गलत हो या सही इल्ज़ाम लगाना, ये होता है सेकेंड लाइफ पोजीशन।
थर्ड लाइफ पोजीशन है आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। कभी कभार खुद को कॉन्फिडेंस लो कर देना कि हमसे तो नहीं हो सकता, आप ही सभी है। हो सकता है एक स्टूडेंट बोल सकता है कि तू तो फर्स्ट आता है, तू तो बहुत कुछ तेरा नॉलेज है, मेरे से तो नहीं हो रहा है, मैं तो मैथ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है देखने को मिले तो। आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि हम भी ठीक नहीं है, तुम भी ठीक नहीं हो, तो जो भी मर्जी हम कर सकते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग क्यों बोलते हैं हम ठीक नहीं है और तुम भी ठीक नहीं हो, तो जब बच्चे बहुत रेस्ट्रिक्टेड लाइफ में बढ़े होते हैं और हर वक्त अगर बोला जाए तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं काम कर रहा है ठीक से, तुझसे मार्क नहीं लाया जा सकता है, इवन स्टूडेंट को भी बोला जाए, कोई टीचर अगर ऐसा बोले, तो इन लोग अपने मन में सोशल विड्रॉल कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और ऐसे थोड़ा मैच्योर्ड लेवल में आके सोचते हैं हम जिंदा ही क्यों हैं। तो जब खुद का असर खुद पर नहीं हो रहा है तो दूसरों पर क्या देख सकते हैं। तो यहाँ पर दे गो फॉर अटेम्प्टिंग सुइसाइड। सुइसाइड का तो रेट बहुत बढ़ रहा है। ज़्यादातर बच्चे अपने घर से दूर रहना चाहते हैं और हॉस्टल में जाके मौज करना चाहते हैं। तो वहाँ पर अगर कुछ मुश्किलें आ जाता है तो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो लाइफ पोजीशन एनालिसिस हम लोग देखें तो 4 तरफ का है, 4 टाइप्स। एक पहला तो बहुत अच्छा है, आई एम ओके यू आर ओके। दूसरा आई एम ओके फिर भी रहता है, लेकिन दूसरे को नॉट ओके बोलना आ जाता है। फिर आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके, वहाँ पर कॉन्फिडेंस विश्वास खुद पर कम हो जाता है, इसलिए लोग बोलते हैं। और चौथा है आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके। सो ये बहुत मुश्किल है। बच्चे अगर बोले तो उनको कड़ी नज़र से उनको हेल्प करना चाहिए, काउंसलिंग देना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत मुश्किल से गुजर रहे हैं। और भी बताएंगे इसमें। नाउ फर्स्ट लाइफ पोजीशन कैसा है, आई एम ओके एंड यू आर ओके, ये तो बहुत बढ़िया है। इन दिस द पर्सन फील्स गुड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड ऑल्सो अबाउट अदर्स। सब कोई हम लोग ठीक ठाक है, सब पॉजिटिव ही है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे। Mehreen is a happy-go-lucky person. She is an aspiring television actress and works hard for the opportunities that come her way. She knows that the struggle period can extend into decades, but she feels comfortable with her choice of profession. Even though उनको पता है कि ये प्रोफेशन बहुत मुश्किल है, फिर भी सोचते हैं कि नहीं ठीक है, हमें इसी में ही रहना है क्योंकि वो अच्छा लगता है। She feels others around her are also undergoing the same struggles and are trying their best to live life fully. तो यहाँ पर जो मेहरीन है, जो एक्ट्रेस बताया गया है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस होगा ही। और अगर कोई सोचे कि हमारा भी स्ट्रेस हो रहा है, मतलब दूसरों का भी हो सकता है, तो ये होता है पॉजिटिव थॉट्स। अगर कोई सोचे कि हमारा ही होता है दूसरों का नहीं, वो ऐसा नहीं, ठीक नहीं है सोचना। सो व्हेन देयर इज अ लाइफ पोजीशन, हम कहीं भी पोजीशन, कुछ भी पोजीशन में आ सकता है, हमारे कैरियर में, हमारे लाइफ में, हमारे फैमिली में। तो इस लाइफ पोजीशन में अगर आ रहे हैं आप, सो इट विल बी द बेस्ट लाइफ पोजीशन इन योर लाइफ हिस्ट्री। लेकिन तो आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके, मैनी पीपल दे से, जहाँ पर उन लोग सुपीरियरिटी दिखाना चाहते हैं, एग्रेसिव होना चाहते हैं और कंपटीशन में लाना चाहते हैं, तो उन लोग बोलेंगे कि आई एम फाइन, आप ठीक नहीं हैं। तो अगर हमारा कुछ मुश्किलें हैं तो आपके वजह से हैं, इन लोग ऐसे ही बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल दिए हैं, सुभाष was asked to lead a team to organize an event. तो सुभाष ऑर्गेनाइज करने गए, तो वहां पर वो बोलने लगे, he asked other students to report to him daily and shouted at them for not completing their work on time.
तो एक लीडर होने के वजह वो काम तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, लेकिन सबको हर रोज कुछ ना कुछ डांटते रहते हैं, कुछ एक्सक्यूज करना चाहते हो, इसलिए काम नहीं करते हो, ये हुआ नहीं वो हुआ नहीं, तो ये खुद का नहीं देख के दूसरों पर ब्लेम करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हर वक्त वो बोलेंगे हम तो ठीक है, तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो। तो ये होगा है, ये कुछ भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, टीम वर्क ठीक से नहीं हो सकता है, क्योंकि लीडर अगर हर वक्त बोले कि हम ठीक है तुम लोग ठीक नहीं हो, दैट इज नॉट ए हेल्दी लाइफ पोजीशन फॉर एनीवन। नाउ नेक्स्ट इज आई एम नॉट ओके एंड यू आर ओके। ये तो खुद को गिरा देने वाला बात है। ये जस्ट इट इज ऑपोजिट टू द प्रीवियस वन में बोल रहे थे आई एम सुपेरियर टू एवरीवन, लेकिन इसमें बोल रहे हैं आई एम इन्फीरियर टू अदर्स। तो स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है जब ये बोले कि हम दूसरों से कम जानते हैं। अगर जानने का कोशिश है तो ठीक है, लेकिन if they see that they are emotional abused by others as normal, then this is having a lack of self belief, lack of confidence, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है, रमन is not able to maintain his teaching position in any school, और ये स्कूल चेंज करते रहते हैं हर 6 महीना में। क्यों? Because he is not stable and thus he is not able to clear university interviews. So he feels that others who have jobs must be brighter than him. आप इंटरव्यू स्कूल का लीजिए, कॉलेज का लीजिए, यूनिवर्सिटीज का लीजिए, जाकि जो प्लेसमेंट होता है यूनिवर्सिटी में बच्चे भी बोलते हैं, कंपेयर करते हैं कि वो सबको जो जो मिल गया उन लोग बहुत अच्छा जानते हैं, हमें नहीं पता इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है। I cannot crack the interview just because of this. तो यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, हमसे नहीं होगा। That is a negative thought which is coming in with them. Now here, Raman lacks confidence in his own abilities and not able to meet his expectation. हम अगर खुद का कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जिसका मोटिवेशन ठीक नहीं है, अगर बोलते हैं उन लोग हर बार फेल करते हैं। तो अगर बोला जाए तो बोलते हैं हम तो लिखते हैं सर या मैडम, हम तो लिखते हैं, लेकिन हम मार्क्स नहीं ला पाते, हमसे नहीं होगा। तो ऐसे भी बच्चे हैं कि हम ठीक नहीं है बच्चे और बाकी बच्चे ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। So this is the third life position. Fourth life position is very critical. इसमें I am not okay, you are not okay. So यहाँ पर person believes that not only is he or she in bad condition, but others in the world are equally bad. तो हमारा सिचुएशन खराब है और बाकी का भी खराब है, तो हमें कौन हेल्प करेगा। So they do not have hope. एक विश्वास नहीं है, जीने का ऐसे आराम नहीं है, जो सोच नहीं है। सो यहाँ पर भी हम एक एग्जाम्पल लिखे हैं। सो बिंदु इज इन कॉलेज, शी फील्स इंक्रीजिंगली डिटैच्ड विद द पीपल अराउंड हर, शी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज एंड रिलेशनशिप्स, शी रेयरली गोज आउट और अंडरटेक्स एनी टास्क। जो सेंटेंस हो रहा है सब नेगेटिव है। She finds most work meaningless and feels that social work also does not bring any real change. तो इसमें ना कि कॉन्फिडेंस लो है, उसका विश्वास भी नहीं है उस पर, तो कुछ भी एक रिलेशन में जाओ तो उसमें भी विश्वास नहीं टिक रहा है। तो यहाँ पर वो खुद को अलग करके रख रही है। Now this is one of the most dangerous life position. यहाँ पर एज टीचर्स, एज काउंसलर्स, एज फैकल्टी जो भी बताया जाए यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज में, हम लोगों को ये अगर बच्चे मिले तो इनको जागृत से रखना है, क्योंकि ये ऐसे बच्चे हो सकता है खुद को गिरा दें, हो भी सकता है
एंटी सोशल बन जाए, क्योंकि उन लोग सोच रहे हैं कि हम तो कुछ काम का नहीं बने, लेकिन हम कुछ करके दिखाते हैं जो कि तोड़-फोड़ करने लगे। तो उसके लिए भी कर सकते हैं और खुद को भी गिरा भी सकते हैं। So now we have 4 types of life position. I am okay, you are okay. It's one of the best life position if anyone is having so. And I am not okay, you are not okay is the worst life position. वहीं पर लाइफ खत्म, क्योंकि आगे बढ़ने का कुछ हिम्मत ही नहीं होगा किसी को भी, किसी के किसी एज में ही। ऐसा नहीं है कि बच्चों का ही होता है, इवन बड़ों का भी ऐसे सिचुएशन हो सकता है। हो सकता है कोई कोई अच्छे घर में मुश्किलें पैदा हो गया, लेकिन स्कूल में जब आते हैं जाते हैं तब अच्छे सिचुएशन देख के फिर घर में आते हैं तो फिर सिचुएशन खराब हो जाता है। ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ सिचुएशन में। तो हम लोग अभी ट्रांजैक्शन स्टाइल्स देखे, लाइफ पोजीशंस देखे, और इस बार हम लोग देखते हैं उसी का ही, जैसे कि हम पहले बताए हैं, लाइफ पोजीशंस आर सिचुएशनल, दे आर वेरी मच सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का एक ही लाइफ पोजीशन हर वक्त होता रहता है, सिचुएशन के हिसाब से। समवॉट इट इज टेम्पररी, समवॉट इट इज परमानेंट। परमानेंट हो जाने से हमारा पर्सनालिटी वहीं पे हो जाता है। जैसे कि एक साइकोलॉजिस्ट वाइट जो बोले हैं, एट वर्क someone might use many critical parent to child transactional reflecting I am positive you are negative। ऐसा होता है क्या? हो सकता है। तो there are people those who say that I am fine, you are not doing it fine। so critical parent से child stage का ego state हो सकता है। However, when this person visits a domineering friend, जो फ्रेंड बहुत डोमिनेट करता है, वही आदमी जाके बोलेगा कि, या जो बच्चा भी हो सकता है, अगर कोई डोमिनेट करता है तो वहां पर बोलेगा कि नहीं नहीं आप ठीक है, हम ठीक नहीं है। तो इसमें सिचुएशन का चेंजेस बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत टेम्पररी है। सिचुएशन जैसे कि क्लास में बच्चा कैसा बात करता है, घर में कैसा बात करता है, दोस्तों में कैसा बात करता है, टीचर्स के साथ कैसा बात करता है, इट इज ऑल सिचुएशन। तो ये सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तन होगा, तो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग के इंटरेक्शन होगा, हम लोग चेंज करेंगे। नाउ इनफैक्ट दे फॉर्म द बेसिस ऑफ वंस पर्सनालिटी। बच्चे अगर इस तरह का सिचुएशन डील करने लगे और ज़्यादातर हमारे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में रहने लगे, तो मुश्किल हो जाएगा उनका ज़िंदगी में। उनका पर्सनालिटी वैसा बन सकता है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव में जूझते रहे तो हम लोग को ये भी देखना है कि किस सिचुएशन को लेके बच्चे पॉजिटिव या नेगेटिव रेस्पॉन्ड करते हैं। इवन वी कैन सी द सेम विद इन आवर कोलिग्स के साथ भी हम लोग ये लाइफ पोजीशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। और एक चीज है गेम एनालिसिस। हम एक केस देंगे जो कि स्कूल में एक घटना घटी है। एक टीचर, उनका नाम लीजिए राम, तो वो पढ़ाने गए हैं, नए नए टीचर है। तो बच्चे देखे नया टीचर है, बदतमीजी करने लगे हैं क्लास में, सुनते नहीं है। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसा भी है जो कि कोई बात कर रहा है शायद। काइंडली म्यूट योरसेल्फ। हाँ, थैंक यू। क्योंकि हम फ्लो में हैं, अगर कोई बात कर लेता है तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से भी हम बताते रहेंगे गेम एनालिसिस। जैसे कि लेकिन वो टीचर पढ़ाते रहे, बाकी टीचर भी देख के बोलने लगे कि आप जो पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक,
बाकी टीचर उनको बोलने लगे कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे सुन तो नहीं रहे बल्कि डिस्टर्ब ज्यादा कर रहे हैं। फिर भी वो टीचर पढ़ाने लगे और दूसरा टेक्निक लगा के पढ़ाने लगे हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो देखने लगे कि कोई कोई बच्चे अब उनका बात सुनते हैं लेकिन कोई बच्चे नहीं सुनते हैं। तो जो ग्रुप है 2-3 का बच्चे हैं जो कि हंसी मजाक भी कर लेते हैं, उसी में से एक लड़का बाहर जाके एपोलॉजी माफी मांगता है टीचर से कि हमसे गलती हो गया सर, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो टीचर कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो टीचर जानते हैं कि ये बच्चा अच्छा बच्चा है लेकिन ग्रुप के वजह से वैसा बदतमीजी करने लगा। सो समथिंग इज डिस्गाइज्ड, समथिंग इज हिडन। ये इसको बोलते हैं गेम एनालिसिस। हम लोग कैसे एनालिस करने लगे इसे, ऐसे सिचुएशन को। तो ये बच्चों में सिर्फ नहीं है, इवन कोलिग्स में भी दिखता है। सो व्हाट इज अ गेम? गेम इज अ ट्रांजैक्शन और इंटरेक्शन बिटवीन पीपल इन विच द मैसेज इज डिस्गाइज। जैसे कि बच्चा बाहर जाके बोल रहा है कि मैं सर हम आपसे बहुत खुश है, ये है अच्छा है, लेकिन अंदर हमसे ये हम कर रहे हैं इसलिए माफी मांग रहे हैं। तो हिडन मैसेज कुछ है जो कि क्लास में नहीं दिख रहा है। जैसे कि कोई कोई बच्चे भी बोल सकते हैं, टीचर भी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई कोई लोग ऐसे गेम खेलते हैं कि अगर किसी को कुछ काम दिया जाए तो बोलते हैं व्हाई डोंट यू, आप क्यों नहीं कर सकते हैं। कोई कोई ऐसे हाँ बोल देते हैं यस, लेकिन कुछ एक्सक्यूज दे देते हैं। तो ये एक तरह का गेम जो खेलते हैं आपस में, उनको समझना है हम लोगों को what type of solution we can get from it. So when the solution is offered, some person starts excusing. जैसे कि other games that people play include the poor me. अगर किसी को बोला जाता है आप काम करो, ये मैं ही बेचारा हूँ क्या जो कि हमें ही काम करना है, तो ऐसे सिंपैथी क्रिएट करते हैं लोग। या ऐसे भी लोग हैं जो गुस्सा हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में है, इंग्लिश बोलिए, मैथ, साइंस, जो भी है, वहाँ पर एचओडी किसी को काम देते हैं तो कोई कोई कुछ एक्सक्यूज करवा देते हैं, हम करना चाहते हैं मैम लेकिन क्या करें कुछ काम हो गया। कोई बोलते हैं हम ही हर वक्त काम करने लगे सर, आप इनको भी दीजिए, क्योंकि मुझे पता है एज एन एचओडी हम भी ऐसे डील करते हैं, लोग बोलते हैं। तो कोई कोई गुस्सा हो जाते हैं, क्यों मुझे ही क्यों। तो ऐसे गेम खेलते हैं जो कि एनालाइज करना पड़ता है हम लोगों को। जैसे कि हम एग्जांपल आप लोगों को देंगे। एक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर है, नाम है वरुणा, is required to ensure that all teachers submit question papers to her a week before the exams. किसी जगह में बोल देते हैं कि इसी डेट में आप लोगों को क्वेश्चन पेपर सबमिट करना है, लेकिन डेट आ गया डेडलाइन, तो वहां पर 2 टीचर डेडलाइन मीट नहीं किए। तो उन लोगों को बोले हैं शी सजेस्ट टू देम टू ऑर्गेनाइज द वर्क ए बिट बेटर, कुछ अच्छे से करो और आज तक देने का कोशिश करो। तो वहां पर उनको बोला गया है why don't you use a monthly and weekly planner so that you can organize your work to meet deadlines. तो कोऑर्डिनेटर बोले कि ऐसे आप लोग बना सकते हैं प्लानर, तो जहां पर आपका डेडलाइन के आगे सब काम खत्म हो सकता है। तो एक टीचर यहाँ पर जैसे कि बोला गया yes that is a good idea but we are so overloaded with work that the time it takes to plan the work is actually wasting more time. If I had this much time, I would actually just do the work. तो यहाँ पर और एक टीचर ऐसे बात करते हैं, काम तो कर सकते हैं लेकिन हमारा बहुत अलग काम दिया गया है जिसके लिए हम नहीं कर सकते हैं। ये अगर ठीक से डेडलाइन के हिसाब से आप लोग बोल सकते हैं पहले तो हो सकता है। तो ऐसे भी लोग बोलते हैं, लेकिन वैसे लोगों को कैसे डील करना है। तो डिफरेंट गेम्स आर प्लेड बाय डिफरेंट पीपल। तो इन्हीं को ही एक अंडरस्टैंडिंग अगर दिया जाए, अगर कम्युनिकेशन
के हिसाब से हम लोग अच्छा नर्चरिंग पेरेंट का कम्युनिकेशन ईगो स्टेट लाए तो हम पर्सनालिटी को और भी बेटर कर सकते हैं। दिस इज व्हाट गेम एनालिसिस। ये होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन लाइफ स्क्रिप्ट भी हम लोग लिखते हैं। लाइफ स्क्रिप्ट किस तरह का लिखा जाता है? जैसे कि हम लोग बच्चे जब थे तो बहुत तरह का हम लोग लाइफ एक्सपीरियंस किए हैं। तो कहीं कहीं लाइफ एक्सपीरियंस में हम लोग कुछ कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं कि हमारे से हमसे यही होगा, हमारा प्लान यही है। तो यहाँ पर व्हाट ऑफ द दो तरफ का कंटेंट होता है स्क्रिप्ट में, व्हाट एंड हाउ, है ना। सो व्हाट ऑफ द स्क्रिप्ट एंड हाउ ऑफ द स्क्रिप्ट, तो क्या क्या किया जा सकता है और कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग एक क्लास का एक एकेडमिक ईयर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पर लेसन प्लान तो होता ही है। लेसन प्लान के साथ साथ हमारा टीचिंग का सिलेबस के हिसाब से हम लोग को ख़त्म करना है। तो व्हाट इज टू बी रिटन एंड हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट, ये हर टीचर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ये तो रहा टीचिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद का तो है ही। यहाँ पर ज़्यादातर चिल्ड्रन जब बच्चे रहते हैं वहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि बच्चा है, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं बच्चे ही बहुत ज़्यादा याद रखते हैं। बचपना जो जो गुजरा है वही लाइफ बन जाता है उनका। तो सम फंडामेंटल आइडियाज लाइफ स्क्रिप्ट में क्या क्या फंडामेंटल आइडियाज लिखा जाता है। अनकॉन्शियस लाइफ प्लान, कुछ कुछ ऐसे कॉन्शियस में याद भी नहीं है फिर भी वो प्लान के हिसाब से आ जाता है। और कुछ कुछ स्ट्रोक्स फ्रॉम पेरेंट्स जो हम रिसीव करते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, वो हम लोग सोचते हैं तो वो भी लाइफ में आ जाता है लाइफ प्लान। वन ऑफ आउटसाइड वंस अवेयरनेस, कुछ कुछ ऐसा हो जाता है हमें ही पता नहीं, लेकिन हमारा यादगिरी में कुछ ऐसा घटना घटी है जो कि हम लाइफ में उसी को प्लान के हिसाब से रखे हैं। रियलिटी इज ऑफन रीडिफाइंड टू जस्टिफाई वंस लाइफ रिसिप्ट। सो लाइफ स्क्रिप्ट में हम लोग रियलिटी लेते तो हैं लेकिन फिर से सोच के रहते हैं कि इस तरह का होने से हमारा लाइफ किस तरह हो सकता है। ज़्यादातर हमारे सेल्फ डेवलपमेंट टीचर्स में हम लोग पर्सनल का भी देते हैं और प्रोफेशनल वेलबींग भी देखते हैं। तो identifying and changing the life script is one of the key aims of therapy. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में हम लोग अगर देखें कि इस तरह का लाइफ स्क्रिप्ट हम लोग का है और किस तरह का चेंजेस हम लोग में डालना है, that is one of the main therapy, main treatment, main understanding of transactional analysis. Sorry. तो यहाँ पर हम लोग खुद का लाइफ स्क्रिप्ट कैसे चेंज करें, कुछ कुछ सवाल खुद को पूछ के। जैसे कि वंस यू हैव आइडेंटिफाइड योर लाइफ स्क्रिप्ट, जैसे कि ये पर्सनली का बात किया जाए तो थिंक ऑफ थिंग्स दैट यू विश टू चेंज अबाउट योरसेल्फ। जैसे लाइफ आपका जा रहा है, आपको कुछ घुटन है या आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील कर हो रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अगर आराम से बैठ के सोचने लगे तो ये होना चाहिए कि क्या चेंजेस खुद में लाया जाए ताकि लाइफ सही सलामत ठीक हो। इस बीइंग ए टीचर पार्ट ऑफ योर लाइफ स्क्रिप्ट, पहले से क्या आप सोच के रखे थे कि टीचर बनेंगे? व्हाट काइंड ऑफ टीचर डू यू सी योरसेल्फ टू बी, किस तरह का टीचर आप सोच के रखे थे? What changes would you like to bring in yourself? As a teacher, you are doing your best. You are the leader of the class. You are taking care of the students. You are the backbone of the society because you are building the fellow citizens of the country. इसके बावजूद आपको कुछ चेंजेस लाना है क्या आप में? What would you have to do to bring about these changes? अगर हाँ, तो किस तरह का क्या क्या कर सकते हैं चेंजेस आप में दिखने के लिए? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट यूनिट का
सेशन जहाँ पर हम लोग ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये अगर आप खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें, जो कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग तभी होता है जब हम सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं। और इस तरह का चेकलिस्ट अगर बनाया जाए तो आप सेल्फ ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा ये ऑडिबल नहीं ही है। हम चेंज करें। हाँ बोलिए। हेलो। Voice is not clear, madam. So, voice is not clear, madam. Sometimes it ups and down. अच्छा अच्छा, मे बी am I okay now? Hello, can you hear me? Yes, ma'am, you are audible. ओके ओके, मे बी ये तो हम लोग तो नहीं देख सकते हैं, इट इज ऑल इंटरनेट। किसी का इंटरनेट ठीक हो तो ठीक हो सकता है, किसी का इंटरनेट अगर मुश्किल हो तो मे बी देयर इज ए प्रॉब्लम। और अगर हमारा इंटरनेट अगर ठीक ठाक नहीं हो, बीच बीच में हो सकता है इसी में हो सकता मुश्किलें हो गया होगा। No, no, ma'am. It's clear. इट्स क्लियर, It's थैंक clear. यू, It's clear. थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम और कुछ स्लाइड्स आप लोगों को दिखाना चाहते हैं ताकि ये आप कल तक जारी रहे। ठीक, मैडम एक क्वेश्चन पूछना मुझे। बोलिए। ये जो ट्रेनिंग सेशन है मैडम, ये अभी जो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है एनएलआई में तो 6 अक्टूबर से, उनके लिए है कि ये जिनका ट्रेनिंग हो चुका एनएलआई में उनके लिए है मैडम? ये तो मैं तो रिसोर्स पर्सन होके आया हूँ तो मुझे नहीं जी पता, मे बी इग्नो में बता सकते हैं जो कि ट्रेनिंग करवा रहे हैं। जी, तो क्योंकि पूरा स्ट्रेंथ हमारे साथी इसमें अटेंड नहीं किया, हमारे बैच वाले मैं देख रहा हूँ ना, अच्छा तो अच्छा, इसमें पूरे लोग नहीं है मतलब। नहीं होना चाहिए क्योंकि जो जो हो रहा है उसी के हाँ भी ऊपर क्वेश्चन भी आएगा ना, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो जी ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर भी देखा जाता है, अगर हाँ सही मैम। सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो परफॉर्मेंस में। May I interfere, ma'am? जी This is for all those who are going to be trained बी during ट्रेंड। this period. ओके ओके ओके, इन लोगों के लिए है जो जो जिनको एनएलआई जाके ये करना है, तो ट्रेनिंग अटेंड करना है, अच्छा उनके लिए है। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसके बाद भी एक ऑफलाइन सेशन होगा शायद, ऑनलाइन का ये होगा 12 दिन की कुछ, फिर ऑफलाइन भी जी जी होगा। जी जी, ऑफलाइन होगा, 5-5 दिन का ग्रुप बनाया गया है, एनएलआई में होगा, हाँ उनके हाँ, लिए है ये। ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर वेलकम मैम। तो शायद पन्नालाल जी आपको अभी क्लियर हो गया है जी ना? जी, हाँ जी मैडम, हाँ थैंक जी यू। जी, ठीक ठीक। और ये तो सब लाइफ हिस्ट्री का हम बता रहे हैं क्योंकि हम लोग तो बहुत लोगों के साथ डील कर रहे हैं, हजार हजार लोग हम लोग देखे हैं, बहुत तरह का लाइफ देखे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस के साथ शेयर करते हैं। शायद फर्स्ट यूनिट सबको ठीक ठाक पता चल गया होगा। रश्मि मैम कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाथ, शी हैज रेज्ड द हैंड। अच्छा, तो कुछ नहीं है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया मेन आप लोगों का लीडरशिप। हम तो बोलेंगे हर टीचर लीडर है अपना अपना जगह में, और किस तरह का लीडर है वो हम देखेंगे इसी सेशन में। तो लीडर, जैसे कि किसी को बोला जाए तो लीडर मतलब क्या, ये पर्सनालिटी होना चाहिए, फॉलोअर्स को देखना चाहिए, उन लोग को डिसीजन ठीक से लेना चाहिए और चैलेंज फेस करना है, सब कुछ मिला के लीडर बोला जाता है। तो लीडरशिप अगर बोला जाए, अगर टीचर्स को लीडर्स बोला जाए तो उनको कुछ पावर भी तो देना है ताकि बच्चे उनका बात तो सुने। तो यहाँ पर टीचर्स एज लीडर्स वर्क मोर इफेक्टिवली व्हेन दे एंजॉय स्पेसिफिक पावर टू एग्जीक्यूट। उनका पावर ये भी है कि अगर क्लास में कोई मुश्किल है, कोई नहीं सुन रहा है, डिसरेस्पेक्ट दे रहा है, तो उनको पूछने का इतना तो राइट है ही। तो यही होता है लीडरशिप, विद पावर वी कैन रियली फंक्शन वेल।
तो Gurns accepted leadership as a quality of an ordinary person with extraordinary determination. ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बन सकता है लीडर, सब कोई बन सकता है, लेकिन मुझे डिटरमिन करना है कि हाँ हमें ये चैलेंज लेना है, हमें ये सब सोसाइटी को देना है, वही लीडर बन सकता है। Leadership is the art of convincing people or a group of individuals to act in accordance to achieve common objectives. अगर हम प्रिंसिपल हैं तो ऐसे लीडर हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो है ही, तो वही ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मेरा एक बड़ा टीचिंग का ग्रुप है। तो टीचर्स ग्रुप को ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए मुझे वो कन्विंसिंग एटीट्यूड का क्वालिटी होना चाहिए। अगर वो है तो हम पक्का लीडर है, हमारा बात सब कुछ माने बिना पूछे ही। ऐसे ऐसे टीचर्स बहुत भी है, बच्चे भी बोले कि मैम ये टीचर मुझे अच्छा लगता है, कुछ तो क्वालिटीज होगा उस टीचर में, है ना। तो इसीलिए बच्चे उन्हीं टीचर को ज़्यादा मानते होंगे। ऐसे भी टीचर्स, ऐसे भी बच्चे हैं कि कितने मुझे बायोलॉजी लेना है बोलते हैं, क्यों? क्योंकि बायोलॉजी टीचर बहुत अच्छे हैं। मैथ्स लेना है, मैथ्स टीचर इतना अच्छा समझाते हैं। तो टीचर का पर्सनालिटी को देख के बच्चे अपना भविष्य बना लेते हैं। तो आप देखिए टीचर का कितना बड़ा जगह है एक सोसाइटी में, है ना। तो बेसिस ऑफ पावर, एक टीचर का पावर बेस होना चाहिए। पावर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ वन पर्सन on another person or group to get the predefined outcome. तो वहाँ पर किस तरह का पावर, जैसे कि दो तरफ का पावर हो सकता है। जैसे कि एक क्लासरूम में एक क्लास खत्म हुआ, दूसरा क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ा मस्ती मजाक सब कोई करने लगे, लेकिन टीचर घुसते घुसते सब ठीक ठाक बैठ गए, क्योंकि टीचर में मिस आ गए, सर आ गए। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं, पावर डायनामिक्स और बेसिस ऑफ पावर बोला जाता है, जहाँ पर पोजिशनल और पर्सनल पावर देखा जाता है। तो पोजिशनल पावर बोलते हैं हम किस तरह का पोजीशन में, इधर हम प्रिंसिपल है या वाइस प्रिंसिपल है या एचओडी है या कोऑर्डिनेटर है, तो उनका एक एक पोजीशन होता है। तो उनके पोजीशन के हिसाब से उन लोग पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को टास्क दे सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल एचओडी या टीचर को भी टास्क दे सकते हैं। तो देयर इज ए हायरार्की, और इसी को बोला जाता है लेजिटिमेट पावर। पोजीशन पावर को बोला जाता है लेजिटिमेट पावर। दूसरा होता है इसी का ही कोएर्सिव पावर। कोएर्सिव पावर में दूसरों को डांट के, पनिश करके काम किया जाता है। दिस इज कॉल्ड कोएर्सिव। जैसे कि एक टीचर होमवर्क दिए और स्टूडेंट होमवर्क नहीं किया, तो वो क्या बोलते हैं, तू होमवर्क नहीं किया तो तुझे हम मार्क्स नहीं देंगे। सो ये टीचर के हाथ में है, तो इसलिए वो कोएर्सिव पावर स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए किस तरह का पावर लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल पावर, पर्सनल के लिए कुछ हायरार्की की या टाइटल की जरूरत नहीं होता है, कुछ रैंक का जरूरत नहीं होता है। इवन ए टीचर विदाउट एक्सपीरियंस ऑल्सो, इफ द पर्सनल पावर, अगर जैसे कि कुछ टाइम में जाना, टाइम में आना, टाइम से सब कुछ करना या कम्युनिकेट करना, दूसरों को एम्पैथाइज करना, दूसरों को सोचना, अच्छे से बात करना, तो हो जाता है पर्सनल पावर। कुछ हायरार्की का जरूरत नहीं होता, ना टाइटल का जरूरत होता है। तो वहाँ पर बच्चे उन लोगों को ज़्यादा सम्मान करना कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। Now, the way leaders talk to their followers, जिस तरह हम लोग बात करते हैं, the way we understand situation को समझते हैं and relate to them, ये सब बोला जाता है पर्सनल पावर। हम लोग ना धमकी दे के काम करवाते हैं, ना पोजीशन दे के काम करवाते हैं, लेकिन हमारा
एम्पैथाइजिंग पावर, समझना दूसरों के बारे में, सिचुएशन के बारे में, उसी के हिसाब से काम करने को ही पर्सनल पावर बोला जाता है। और एक होता है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर होता है कुछ रेफरी का, जैसे कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं, तो उसी का ही एक रेफरेंस आ जाता है, जैसे कि पॉलिटिशियंस हो गया, कि सेलिब्रिटीज हो गए, या बहुत बड़े लीडर हो गए सोसाइटी में। तो वहाँ पर अपना जो पावर है वो अपने सोसाइटी के हिसाब से पावर है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है, गिजुबाई वाडेका could be seen as a teacher holding referent power. इसमें क्या होता है, when the individual becomes so famous that many people start following him or her, एक रोल मॉडल हो जाता है। ऐसा भी होता है, बड़े बड़े लीडर होते हैं, बड़े बड़े, जैसे कि हमारे जैसे कलाम जी हो गए जो कि प्रेसिडेंट थे, जो कि विवेकानंद जी हो गए, और अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं मोदी जी हैं। अपने अपने हिसाब का परसेप्शन है, कौन कैसा किसको डेवलप करना चाहता है, किस तरह का पावर अडॉप्ट करना चाहता है अपना फेमस, अपना पॉपुलैरिटी के लिए, उन लोग वैसे करें। और उसी के हिसाब से इवन टीचर्स में भी रेफरेंट पावर भी होता है। बहुत पॉपुलर हो गए, बच्चे बहुत मानते हैं। एक कोई टीचर क्लास ले रहे हैं, ऐसा भी सुनाई में दिया है कि 2-3 घंटा क्लास लिए हैं, लेकिन बच्चे वैसे ही वैसे बैठे थे। तो इट इज रेफरेंट पावर, टीचर कैसे ले रहे हैं क्लास, किस तरह से ले रहे हैं, कुछ ह्यूमरस है, कुछ हंसी मजाक है, कुछ लेटेस्ट अपडेट देना, और पढ़ाई में भी ध्यान देना। तो आजकल डिफरेंट टेक्निक तो आता ही है उसी के हिसाब से। लेकिन ऐसा ना करना कि हाँ बच्चों को खेलने के लिए आराम से क्लास में दे दे तो हम बढ़िया हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये तो सोच बेकार है। तो पावर अगर देखा जाए तो 4 तरह का होता है। वन इज पोजीशन, नेक्स्ट इज कोएर्सिव, देन पर्सनल एंड रेफरेंट। तो ये लीडरशिप स्टाइल्स तो बहुत सारा है। लीडरशिप स्टाइल्स हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा लीडरशिप स्टाइल्स है, जैसे कि डायरेक्टिव है, इनडायरेक्ट लीडरशिप है, ऑथोरिटेटिव है, ऑटोक्रेटिक है। हर तरह का लीडरशिप स्टाइल्स होता है। तो लीडरशिप स्टाइल्स के हिसाब से हम लोग कल पढ़ेंगे और अपना प्रोफेशनल एथिक्स भी जानेंगे। तो इफ आई वुड लाइक टू सम ऑल दिस थिंग्स, आप लोग सोच के देखिए किस तरह का ईगो स्टेट्स में आप लोग हैं, कौन सा ईगो स्टेट्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इज इट चाइल्ड ईगो स्टेट और एडल्ट ईगो स्टेट और पेरेंट ईगो स्टेट, है ना। तो चाइल्ड ईगो स्टेट में अगर भी काम करते हैं तो किस तरह का होता है, अडॉप्टेड होता है या फ्री होता है, जो मन मर्जी काम करते हैं या सिचुएशन के हिसाब से होता है। आपका बात करने का स्टाइल भी अलग होना चाहिए। अगर पेरेंटल होता है तो एक नर्चरिंग होता है, दूसरों का समझ के काम करना, या हो जाता है कंट्रोलिंग पेरेंट, क्रिटिकल पेरेंट, है ना। तो आप लोगों के बीच में तो कितने सारे पेरेंट्स भी होंगे, आप देख सकते हैं कि आप क्लासरूम में कैसे, कौन से ईगो स्टेट में है, स्टाफ रूम में किस तरह के ईगो स्टेट है, और घर पे किस तरह का ईगो स्टेट है। तो ये सब डिफर करता है। तो एडल्ट तो हर वक्त मैच्योर ईगो स्टेट ही हो जाता है, हम लोग का अंडरस्टैंडिंग भी होता है उसमें। तो ट्रांजैक्शन स्टाइल्स तो कंप्लीमेंट्री, अल्टेरियर, क्रॉस्ड, ये तीनों में से आपका ट्रांजैक्शन स्टाइल कहाँ पर है, क्योंकि ये जो सेल्फ डेवलपमेंट में है, आप लोग खुद का भी स्टाइल देख सकते हैं, आप कहाँ पर खुद का पर्सनालिटी कहाँ पर डिपेंड कर सकते हैं, है ना। और इस तरह का खुद को चेंज करना, किस तरह का चेंज करना है, कहाँ पर हम लोग कुछ चेंजेस लाने से हम लोग का पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो सकता है। So that is what about all these things. We will be meeting tomorrow again
with more and more examples about leaders and your styles of leadership. Okay. Thank you, Okay. madam. Thank you. Thank you all of you. Thank you, ma'am. Thank you. ऐसे भी 4 दिन चला Thank जाएगा. you, ma'am. Thank you so much, Rita ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. लाइफ ऐसा ही चलता रहे, क्योंकि लाइफ में ऊपर चढ़ाव तो होता ही रहा, और हम लोग को तो देखना है, जाते जाते ये बोलते रहेंगे कि जैसे हमारा ECG ग्राफ है, ऊपर नीचे होता है, वैसे हमारा लाइफ भी है. प्रोफेशनल लाइफ बोलिए कि पर्सनल लाइफ बोलिए, कभी ऊपर जाता है तो नीचे तो आएगा ही, नीचे आ जाएगा तो ऊपर तो आएगा ही. ये तो हमारा एक्सपीरियंस से हम बोल रहे हैं, लेकिन ये होता ही रहता है. थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत अच्छा आपने गाइड किया, बहुत रियली आज समझ में आया. किताब को बुक तो पढ़ रहे थे लेकिन मजा कुछ नहीं आ रहा था. थैंक यू वेरी मच. आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पहला चैप्टर था. यही तो लाइफ. थैंक यू. आगे भी देखते हैं. नहीं वो कर रहे थे मीटिंग. थैंक यू वेरी मच. क्या चल रहा है वहाँ पे? लीडरशिप. ठीक है. थैंक यू. लीडरशिप का चल रहा है. थैंक यू so मैडम. much. मैडम, Thank you, Rita Rani ma'am. Thank you. मैडम, Nice थैंक यू. session. Very informative and beneficial session, ma'am. Thank you. और खासकर मैडम लाइफ जब से का भी तेजस है. हाँ, ये वाला ये गुड इवनिंग। इग्नो वाला. नमस्ते सर। अच्छा मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब आए, और अरे हम कुछ तो नहीं तो लिए। समय हाँ वही तो मैं बता रही हूँ कि 5 बजे से चल रहा है. आपका भी सेशन अच्छा लगा मैडम, और खासकर हिंदी में बता रही थी बहुत तो अच्छा सारा लगा चीज आपका. क्लियर हो चालू हो गया. रहा था ना। हाँ हाँ मैडम, हिंदी में बताने से और Nice, madam. इंटरेस्टिंग क्लास हो गया. ना तो हम नहीं कर जाएंगे। अच्छा, बाकी 3 दिन में हिंदी में ही चलता रहेगा. हाँ मैडम, इंग्लिश वैसे में मिक्स चलेंगे तो मजा आएगा. ओके ओके मैडम. क्या है मैडम, अच्छा 7 बजे लगता है, तक बोलने पर मतलब वो तो थोड़ा सा अभी से बोल कॉन्सेप्ट रही है क्लियर होते जाएंगे. फिर कल मिलते हैं. तो हम टीचर तो नर्चरिंग टीचर है ना. थैंक यू मैडम. ठीक. थैंक यू. मिलते हैं कल. मिलते हैं कल. दे देखो बोल दी. ये हो गया खत्म. क्या बताएंगे? Yes, sir. अभी और कोई क्लास लेगा क्या? अब तो खत्म हो गई ना ट्रेनिंग.